Hello students, welcome back to my YouTube class. And in my previous class I have explained you the topic of system of linear equation, in which I have explained that about the consistent solution and inconsistent solution. मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चार्ट बना के और एक टेबल के फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सो दैट आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कि कब हमारे पास में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है और कब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, सो दैट कि आपको आज की क्लास समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू माय क्लास। Okay students, so in my previous class I have explained you that how to solve the system of linear equation with the help of matrix, right? So I have explained that if the determinant of the matrix, right, is not equal to 0, it means what? That is a non-singular matrix and it will be have a unique solution. And if the matrix is a singular matrix, then there may be two cases. So these all things I have explained you in my previous class. So today I will explain some questions based on that. So let's start with the first question. This first question is given a system of linear equation x plus 2y equal 2 and 2x plus 3y equal 3. Right? In the system of linear equation, we have to check that this is solution of this system of linear equation is consistent or inconsistent. So for this we have to check that this is a singular matrix or non-singular matrix. If this is a non-singular matrix, it means the solution is what? Consistent, or otherwise again we are having two cases. So first I will write the system of linear equation in matrix form, right? So this can be written as what? 1 2. First we will write the matrix of the coefficient. Coefficient of x is what? 1. Coefficient of y is 2. So we will write 1 2. This is 2 and 3. So we will get a 2 by 2 matrix, right? Now here we will write the variables which are given in the system of linear equation, and equal we will write this matrix. So this is the method to write system of linear equation in the form of a matrix. Clear? Now we have to check that this is a consistent solution or inconsistent solution, right? So we have to check that the determinant of this matrix. This is what? Matrix A. This is matrix X and this is matrix B. So we can write AX is equal to B. Right? Now we have to find the determinant of matrix A. आपको ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, जो मैट्रिक्स A है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद में वी कैन डिसाइड दैट दिस इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट? सो वी कैन राइट 1 2 2 3. Determinant of this matrix is what? 1 multiply 3 minus 2 multiply 2. So this is 3 minus 4. It means what? It is minus 1. Clear? So minus 1 means what? This is not equal to 0. It means the determinant is not equal to 0. So this is a non-singular matrix. So A is non-singular. And if it is non-singular, it means what? It will have a unique solution. So system of linear equation have or contain unique solution. Unique solution means what? Consistent. So clear? So if it in the question they are asked only for that check the solution of the given system of linear equation is consistent or inconsistent. So first we will find the determinant of the matrix A,
एंड इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो इट मीन्स वॉट, दैट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है. और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट, राइट. अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट होता है, नो सॉल्यूशन होता है तो इनकंसिस्टेंट होता है. ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया है. सो now in this question we have to find the solution of this system of linear equation. So again we will write this in the form of ax equal b, जहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 5 7 2 3, then matrix x and y equal b, right. This is how we will write. अब आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका 5 2 7 3. डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करेंगे तो 15 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 15 माइनस 14 क्या आ रहा है 1, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है. इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. दिस इम्प्लाइज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंटेन यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है. अब इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं. जब आपके पास में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए हमारे पास में मेथड क्या होता है, हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे. मतलब हमारे पास में इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स p. मतलब हमें मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करना है और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास में सॉल्यूशन आ जाएगा. तो पहले इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, इन्वर्स किसके इक्वल होता है, इन्वर्स इक्वल होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. ठीक है. तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय द मैट्रिक्स कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे उसका मैट्रिक्स एंड देन उसका ट्रांसपोज करके, राइट. तो पहले हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं. तो a11 की वैल्यू क्या होगी, देखो जो 5 है उसके रेस्पेक्ट में इसका कोफैक्टर क्या होगा 3, राइट. a मतलब एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1 की पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय m11. ठीक है. और m11 क्या होता है उसका माइनर, राइट. तो -1 की पावर 1 + 1 तो क्या हो जाएगा +1 और m11 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3, तो ये 3 आ जाएगा. ऐसे a12 जब हम फाइंड करेंगे -1 की पावर 1 + 2 और m12 का मतलब क्या हो गया, इसके रेस्पेक्ट में इस कॉलम रो और इस कॉलम को छोड़ के जो भी हमारे पास में डिटर्मिनेंट बन रहा है तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो वो एलिमेंट ही आएगा सिर्फ, राइट. तो -1 की पावर 1 + 2 हमारे पास में क्या हो जाएगा -1 और -1 मल्टीप्लाई बाई आपके पास में क्या है a12 मतलब इसको छोड़ के और ये 7 तो -7 आ जाएगा. a21 मतलब -1 की पावर 2 + 1 और m1 21 तो 21 मतलब 7, राइट. माइनस यहाँ से माइनस और 21 हमारा एलिमेंट क्या है 2 तो ये क्या हो जाएगा -2. सेम a22 हमारे पास में क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 एंड m22 का मतलब क्या हो गया दिस एलिमेंट, इसके रेस्पेक्ट में एलिमेंट कौन सा है 5, राइट. तो m22 हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से 5 तो 5 आ गया, राइट. तो हमारे पास में कोफैक्टर्स जो है उसका मैट्रिक्स क्या बन रहा है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. -7 -2. ठीक है. अब इसका हम क्या करेंगे ट्रांसपोज. तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल होगा 3 -7 -2 5 इसके ट्रांसपोज के इक्वल. तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 3 -2 -7 और 5, राइट. ये हो गया हमारे पास में ट्रांसपोज. अब हम क्या करेंगे इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे. तो ए इन्वर्स का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है ये, इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास में क्या है 1 दिस, देन हमें क्या पुट करना है ये मैट्रिक्स की वैल्यू. तो 3 -2 -7 5
राइट। ये 1/1 है तो 1 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करने से भी यही मैट्रिक्स वापस आएगा, तो 3 -2 -7 और 5, राइट। अब हमें क्या करना है, x इक्वल होता है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल होगा, A इनवर्स B के इक्वल। तो मतलब x और y किसके इक्वल हो जाएगा, A इनवर्स क्या है हमारे पास में 3 -2 -7 और 5 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स 4 and 5, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ रहा है, एक्स वाई एज इट इज़। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये दोनों एलिमेंट्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 4 12 एंड -2 × -5 इज -10। देन दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई दिस, तो -28 + 25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स वाई इक्वल आपके पास में क्या आ जाएगा, ये +2 और यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, -3। इसका मतलब हमारे पास में x की वैल्यू क्या हो गई 2 और y की वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई -3। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। क्लियर। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस्ड। एक और क्वेश्चन मैं ले रही हूँ जिसमें आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और आपको ये चेक करना है कि द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसका मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप इसको लिखोगे तो आपको AX = B, राइट। तो A की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी 1 3 2 6, राइट। जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास में x y एंड दिस इज इक्वल टू 5 8, राइट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हम फाइंड करेंगे 1 3 2 6, तो ये किसके इक्वल होगा, देखो 6 -6 इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर ये नॉन सिंगुलर आता तो हमारे पास में ये हमेशा कैसा होता, जो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता, यूनिक सॉल्यूशन होता। लेकिन अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी होता है। हमें आगे चेक करना पड़ेगा इसको। इसके लिए अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास में सिंगुलर मैट्रिक्स आता है तो इसके कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों चांसेस होते हैं सॉल्यूशन के होने के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट ऑफ ए और बी ये फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करते हैं किससे, बी से। अगर ये आपके पास में नॉट इक्वल टू 0 आता है, इट मीन्स ये सॉल्यूशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। फिर आपको हमें अगेन चेक करना पड़ेगा उसको, राइट। तो चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास में क्या हो रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें पहले एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम A11 फाइंड करते हैं। A11 के लिए हमारे पास में क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 और M11 इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, ये यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। M11 की वैल्यू क्या होगी 6, राइट। ऐसे A12 फाइंड करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 जो कि नेगेटिव हो जाएगा और M12 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 2, तो ये -2 हो जाएगा। ऐसे ही A21 जब हम फाइंड करेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 और M21 का मतलब हो गया 3, तो ये -3 हो जाएगा। ऐसे ही हम A22 फाइंड करेंगे तो हमारे पास में -1 की पावर 2 + 2 और ये हमारे पास में हो जाएगा M22। तो ये हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, इसका
टू का मतलब हो गया पॉजिटिव और m22 की वैल्यू क्या है 1, तो हमारे पास में 1 आ जाएगा, राइट। इससे जब हम मैट्रिक्स इसका फाइंड करेंगे इसकी हेल्प से, तो ये क्या बनेगा 6 -2 -3 और 1, ये मैट्रिक्स हमारे पास में बनेगा इसका, राइट। अब हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ किसके इक्वल होगा, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है इसका ट्रांसपोज, तो -3 -2 1 और इसका ट्रांसपोज, ठीक है। इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा 6 -3 -2 1, राइट। ये हमारे पास में क्या आ गया इसका ट्रांसपोज, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के बाद में हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये हम फाइंड करते हैं 6 -3 -2 1, इसको हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं, बी हमारे पास क्या है 5 8। इससे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 6 और इस मल्टीप्लाई बाय 5 इज 30 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय दिस -24, राइट। 3 मल्टीप्लाई बाय दिस 24। सेम जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 और ये प्लस का 8 हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास में आ रहा है, तो ये आपके पास में अभी जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास में क्या आ रहा है, ये यहाँ से आपके पास में 6 और -2, और ये 6 और -2 जो है नॉट इक्वल टू क्या है ओ का मतलब क्या हो गया नल मैट्रिक्स, मतलब अगर इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास में 0 0 ये मैट्रिक्स आ जाती, ठीक है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा होता, कंसिस्टेंट भी हो सकता था, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता था, लेकिन अगर ये नॉट इक्वल टू दिस आ रहा है इट मीन्स व्हाट कि ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो मतलब अगर इसकी वैल्यू जो है हमारे पास में नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती 0 0, तो इसका मतलब होता कि या तो इसका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा या फिर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, वो फिर हमें आगे चेक करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि देखो अगर आपके पास में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी गिवन है उसका अगर आपके पास में डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इट मीन्स कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है तो अगेन आपके पास में दो केसेस हो सकते हैं, या तो इनफाइनाइट होगा, राइट, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर इनफाइनाइट होगा, यूनिक और इनफाइनाइट दोनों ही सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। तो अगर ये इनफाइनाइट आता है आपके पास में, सॉरी इक्वल टू 0 आता है, तो फिर हम क्या करते हैं इस तरह से चेक करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसको भी बी से मल्टीप्लाई करने के बाद में इस केस में हम क्या फाइंड करते हैं, देखो ये जो केस हमारे पास में आता है इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और उसको बी से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास में नॉट इक्वल टू 0 आती है इट मीन्स व्हाट, इनकंसिस्टेंट, और अगर इक्वल टू 0 आती है तो अगेन आपके पास में दो केसेस हो सकते हैं, यूनिक सॉरी इनफाइनाइट और मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, फिर हम उसको चेक करते हैं आगे, राइट। तो इस तरह से हम सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड करते हैं। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा कि किस सिचुएशन में हमारे पास में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, किस सिचुएशन में हमारे पास में इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, बट अगर आप इसको जैसे मैंने टेबल की फॉर्म में आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था, अगर आप उसको ध्यान से अगर सुनोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे तो आई होप आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। मैं आपके लिए इस कॉन्सेप्ट पे और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।